Okay, so let's start with today's lecture, that is economics this week. So there are 5 topics जो आज हम cover करेंगे. The first topic is about the fertilizer subsidy. Okay, the fertilizer subsidy has been approved, so we'll discuss about that. उसी से जुड़ा हुआ topic है nutrient based subsidy regime, so I'll be discussing those conceptually. Then third is the record FDI flow. Recently government came with the data that record FDI flow हो रहा है. So we'll analyze the article. There was an article in the Hindu. Then direct tax collection जो है वो up हुआ है, it has gone up. And the fifth article is about recovery of the post pandemic. ये pandemic जो चल रहा है उसमें economic recovery कैसे हो रही है. So let's understand and start with the first topic, that is cabinet approves fertilizer subsidy. Now subsidy is a kind of a support that is given by government, and अगर आप subsidy check करोगे तो subsidies are mainly given into multiple areas. One is food subsidy, you have fertilizer subsidy, okay, and then we have n number of subsidies which are given. Broadly जो है food, fertilizer, fuel, these subsidies are given. So cabinet approves additional fertilizer subsidy as a one time relief to provide COVID relief. क्यों हुआ है one time, क्यों दिया है, why? It is because the prices of the fertilizer has gone up. Now if you try and understand fertilizer subsidy, so fertilizer subsidy 3 fertilizer होते हैं, NPK, that is nitrogen, phosphorus and potash. ठीक है, तो ये 3 सब्सिडीज हम लोग देते हैं. नाइट्रोजन जो है that is under statutory limit, यानी गवर्नमेंट जो है इसकी प्राइस को लिमिट कर देता है, which means government gives mostly subsidies on nitrogenous fertilizer. जो phosphorus and potash है, that is P and K, they are imported, और इनमें सब्सिडीज गवर्नमेंट दूसरी तरीके से देती है. they basically per kg पे हम लोग सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं. So let's understand the dynamic. The Cabinet Committee on Economic Affairs has approved the proposal to hike subsidy rates of phosphorus and potassium by 140%. So international price has increased, and that is why the subsidies government ने अपनी तरफ से बढ़ा दिया है. The aim is to provide relief to farmers as a kharif season begins. तो अभी खरीफ सीजन जो है begin हुआ है. It is just one time measure. It is not a regular process. It's a one time as a COVID relief. Now जैसा मैंने बताया, फर्टिलाइजर सब्सिडी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी, और यहाँ पर जो है हम लोग फार्मर्स को सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं इन फर्टिलाइजर बिकॉज फर्टिलाइजर्स आर कॉस्टली. नाउ यहाँ पे यूरिया क्या करती है, गवर्नमेंट सेट्स द मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी एमआरपी गवर्नमेंट सेट करती है, एंड यूजुअली जो मैक्सिमम जो सब्सिडीज मिलती है वो यूरिया में ही मिलती है, बिकॉज यूरिया इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड फर्टिलाइजर. तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, आपको फार्मर्स को मार्केट से वो परचेज करते हैं, बट उनको काफी सब्सिडाइज रेट पे मिलता है. तो ये स्टैट्यूटरी कंट्रोल में रहता है इसका प्राइस काफी हद तक. कमिंग टू द नॉन यूरिया फर्टिलाइजर, प्राइसेस आर डी कंट्रोल. डी कंट्रोल मतलब कि प्राइसेस आर ओपन, मार्केट ड्रिवन है. डी कंट्रोल का मतलब है मार्केट ड्रिवन. ओके, एंड द सेंटर फिक्सेस न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रेट, यानी जैसे पी एंड के है तो इसमें पर केजी हम फर्टिलाइजर पे हम न्यूट्रिएंट, जैसे फॉस्फोरस एक न्यूट्रिएंट है, पोटाश न्यूट्रिएंट है, तो न्यूट्रिएंट बेस पे पर केजी हम सब्सिडी रेट प्रोवाइड करते हैं. एंड द आइडिया इज दैट पीपल यूज जुडिशियस. हम जो बहुत ज्यादा, इफ यू प्रोवाइड मोर सब्सिडीज पीपल विल यूज मोर. सो गवर्नमेंट हैव टू वेरी क्लियर कि हमारा जो सब्सिडी होना चाहिए दैट शुड बी लिमिटेड एंड इट शुड बी कंट्रोल्ड. सो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्टार्टेड इन 2010. अंडर दिस अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सब्सिडी इज डिसाइडेड ऑन द एनुअल बेसिस and is provided to each grade of subsidized phosphatic and potassic fertilizer. तो यहाँ पे बहुत सारे जो आपके ग्रेड होते हैं फॉस्फेटिक एंड पोटेशिक, उनको हम सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं बेस्ड ऑन न्यूट्रिएंट कंटेंट प्रेजेंट होते हैं. तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी का. The scheme is administered by Department of Fertilizer under Ministry of Chemical Affairs. So Ministry of Chemical Affairs मैनेज करता है. Now as we know in India, urea is a controlled fertilizer and it's sold at statutory notified uniform price sale price, यानी गवर्नमेंट प्राइस डिसाइड करती है. अगर मार्केट का प्राइस ऊपर जाएगा गवर्नमेंट वो सब्सिडी खुद बेयर करेगी. Then coming to the nutrient based subsidy allows the manufacturers, importers to fix MRP at a reasonable level. तो गवर्नमेंट अलाउ करती है. Domestic and international cost of P and K fertilizer is considered along with inventory levels and currency exchange in order to decide MRP. चूंकि यहाँ पर फॉस्फोरस एंड पोटाश जो है वो इंपोर्ट करते हैं, सो नेचुरली उसका प्राइस फ्लक्चुएट करता है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल डिमांड
एट द सेम टाइम बिकॉज ऑफ करेंसी जो एक्सचेंज होता है, यानी डॉलर रूपी का जो वेरिएशन होता है, डॉलर एंड रूपी, सो लेट्स से टुडे $1 इक्वल टू 74 रुपीज, लेट्स से अब ये फ्लक्चुएट हुआ 70 रुपीज हो गया या 75 या 80 रुपीज हो गया, सो दिस फ्लक्चुएशन विल इम्पैक्ट द फर्टिलाइजर इंपोर्ट कॉस्ट, और वो नेचुरली जब मार्केट में जाएगा तो फार्मर को इंक्रीज प्राइस में मिलेगा, एंड हियर गवर्नमेंट वुड से कि हम एक्स्ट्रा सब्सिडी प्रोवाइड करके आपको हम उसके जो इम्पैक्ट है उससे हम बचा रहे हैं. So union budget 2021 में there have been no reforms in the subsidy and government has allocated around close to 80,000 crore for that. आप सोचो एक अच्छा खासा पैसा गवर्नमेंट सब्सिडीज में देती है. So that is article 1 and article 2. Now coming to this article, और ये बहुत ही widely read article था in the last 1 week. Record FDI flow, yes. Cause for celebration, no. थोड़ा सा समझते हैं. Let me give you a background for that. So investment जो foreign से आता है, foreign investments ब्रॉडली जो है वो एफडीआई हो सकता है, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और दे कैन बी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स. क्या होते हैं डिफरेंस? बाहर से जो पैसा आ रहा है कौन लेके आता है? सो दिस फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज ब्रॉट बाय एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, फाइनेंशियल फर्म्स. ठीक है, तो ये लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं इंडिया में. जो एफडीआई है ना, एफडीआई इज बेसिकली अ इन्वेस्टमेंट मेड इनटू इन अ पर्टिकुलर सेक्टर और कंपनी, एंड नॉर्मली जो है दे हैव अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव. ये कंपनी में जैसे मान लीजिए कोई ऑलरेडी एग्जिस्ट कंपनी है, तो किसी ने कहा कि भाई हम 20% इन्वेस्ट कर रहे हैं और हम कंपनी का 20% परचेज कर रहे हैं. सो फॉरेन कंपनी परचेज 20% ऑफ इंडियन फर्म. सो दे हैव लॉन्ग टर्म अप्रोच, और ये लॉन्ग टर्म जो है इनका जो अप्रोच होता है, दे ब्रिंग इन्वेस्टमेंट्स. सो जो भी कंपनी होता है उसमें बहुत सारा पैसा आता है, सो एक्सपेंशन कैन बी देयर. द फॉरेन कंपनी माइट ब्रिंग टेक्नोलॉजी लेके आ सकते हैं. इट माइट ब्रिंग सर्टेन काइंड ऑफ न्यू बिजनेस प्रैक्टिसेस आल्सो. सो एफडीआई बेनिफिट्स द इकोनॉमी इन लॉन्ग रन बिकॉज ये स्टेबल फंड होता है, लॉन्ग टर्म होता है. बट ये जो आपके पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं ये शॉर्ट नेचर होते हैं एंड दे आर वेरी डाइवर्स. मतलब अगर एफडीआई होता है तो किसी फर्म या सेक्टर में होता है. फॉर एग्जांपल लेट्स से वी हैव इन्वेस्टमेंट इन टेलीकॉम सेक्टर, तो टेलीकॉम में किसी फर्म में एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ, किसी कंपनी ने उस कंपनी का शेयर खरीद लिया. नॉर्मली एफडीआई हम कहते हैं 10% से अगर कंपनी का जो इवैल्यूएशन है 10% प्लस अगर होता है तो हम एफडीआई बोलते हैं. लेस देन 10% होता है तो उसको हम एफआईआई बोलते हैं. ठीक है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को एफआईआई बोलते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. ठीक है, तो अब ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं ये लोग बेसिकली दे इन्वेस्ट ऑन द स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं. एंड जब स्टॉक प्राइसेस ऊपर जाते हैं दे फील दैट इंडियन कंपनी इज डूइंग वेल, स्टॉक प्राइसेस माइट गो अप, और इंडियन इकोनॉमी माइट डू वेल एंड स्टॉक प्राइसेस में गो अप. और जब स्टॉक प्राइस ऊपर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वी विल गेट अ रिटर्न. सो इनका एक शॉर्ट टर्म अप्रोच होता है, दे वांट टू अर्न ऑन द स्टॉक प्राइसेस. बट इनके साथ प्रॉब्लम क्या होता है, दे आर हाईली वॉलेटाइल इन नेचर. वॉलेटाइल मतलब बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया, अगर स्टॉक प्राइस नीचे गया तो वो पैसा सारा बाहर चला जाएगा. और बहुत सारा पैसा, इकोनॉमी इज डूइंग वेल, सो बहुत सारा पैसा इकोनॉमी में पंप करते हैं स्टॉक में, तो स्टॉक प्राइस कई बार बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है. तो स्टॉक प्राइसेस फ्लक्चुएट करता है, विच इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी, बिकॉज वॉलेटिलिटी इज नॉट व्हाट मार्केट वांट. मार्केट नहीं चाहता कि बहुत ज्यादा अप डाउन है. एक स्टेबल काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है गवर्नमेंट मार्केट्स एक्सपेक्ट करता है. सो इफ द मार्केट इन्वेस्टमेंट बहुत ऊपर नीचे होता है, दैट इज नॉट गुड फॉर इकोनॉमी इन लॉन्ग रन. सो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में हुए हैं लास्ट ईयर के, उसमें एफडीआई का लेवल काफी ऊपर गया है. इट इज बेटर देन द अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड. बट इसका एक शॉर्ट साइटेड व्यू भी है कि भाई इन्वेस्टमेंट तो बड़ा है जो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है, बट दिस आर्टिकल एनालाइजेस दैट ये क्यों जो है अच्छा नहीं है या इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या है. सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एफडीआई मतलब कंपनीज में इन्वेस्ट होता है, 10% ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ कंपनी से ज्यादा यूजुअली होता है. पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है वो लेस देन 10% होता है. ये शॉर्ट टर्म डाइवर्स होता है और ये मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और मार्केट में शेयर प्राइसेस जो ऊपर नीचे जाते हैं उससे उनकी अर्निंग होती है. ये एक लॉन्ग टर्म, एक बार कंपनी में इन्वेस्ट किया तो हमेशा आप रहोगे कंपनी में, यू वांट टू स्टे फॉर एवर. कई बार कंपनीज जब इंडिया में आती हैं एफडीआई, तो एफडीआई जो है वो
टेक्नोलॉजी लेके आता है, जॉब क्रिएशन होता है, सो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं आपके एफडीआई के। सो एफडीआई इज अ स्टेबल फंड व्हिच इज यूजुअली वी वांट दैट टू हैपन। सो रिकॉर्ड एफडीआई फ्लो, यस फॉर अ यस हुआ है, कॉज ऑफ सेलिब्रेशन नो। बिकॉज क्यों नहीं हुआ है? बिकॉज लेट्स अंडरस्टैंड दिस आर्टिकल। सो डेटा रिलीज हुआ है, गवर्नमेंट ने रिलीज किया, मिनिस्ट्री कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वेयर दे सेड दैट एफडीआई बहुत इंप्रेसिव रहा है हमारा, एंड वी हैव डन एफडीआई ऑफ $81 बिलियन, यानी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 2021 जो फाइनेंशियल ईयर है, फ्रॉम अप्रैल जब कोविड आया था टू मार्च 21, तो इस पीरियड में वी हैड अ रिकॉर्ड एफडीआई फ्लो which is 10% higher than last financial year 2019-20, यानी लास्ट फाइनेंशियल ईयर से हम 10% ऊपर गया है इन स्पाइट ऑफ कोविड में, जहां सारे वर्ल्ड इकोनॉमी श्रिंक कर रही है, वी आर डूइंग बेटर। दिस मार्क्स अ इंप्रेसिव ग्रोथ given that global FDI has declined by 42%, global FDI 42% से कम हुआ है, and developing countries का 12% से कम हुआ है because of the COVID pandemic, but India has done relatively much better rather. So गवर्नमेंट कहते ही है कि भी दिस रिकॉर्ड एफडीआई जो इंडिया में आया है, बाहर से जो पैसा इन्वेस्टमेंट्स आया है, दिस इज बिकॉज ऑफ रिफॉर्म्स, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हमने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हैं मार्केट में, टैक्स रिफॉर्म्स हुए हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स किए हैं, सो दैट दिस इन्वेस्टमेंट कैन बी सीन एज अ वेरी पॉजिटिव ग्रोथ पोटेंशियल फॉर इंडियन इकोनॉमी। एक पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट सिनेरियो जनरेट हुआ है, एंड इंडिया कैन बी अ गुड डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर, ऐसा गवर्नमेंट बता रही है। So what is FDI? What are the positives? As I mentioned, FDI usually long term होता है, और कंपनीज जो है वो इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करती हैं। दे हैव अ लॉन्ग टर्म अप्रोच, वो कंपनी के अंदर अपना शेयर बढ़ाती हैं। एट द सेम टाइम दी जो फॉरेन कंपनीज एफडीआई कर रही हैं, मोस्टली एमएनसीज होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, दे दे हैव अ लॉन्ग टर्म विजन, वो इंडिया में स्टे करेंगी, सो दे कैन डाइवर्सिफाई द पोर्टफोलियो, इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो बढ़ाती हैं, ठीक है, मतलब कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स हो जाते हैं। मान लो एक ही इंडिविजुअल या दो इंडिविजुअल करते हैं, तो अभी मान लो 2 एफडीआई हुआ, तो उसमें 1-2 कंपनी, 2 कंपनीज और ने एफडीआई कर दिया, तो 4 आपके इन्वेस्टर्स होते हैं, तो वो एक तरह से अच्छा होता है, बिकॉज डाइवर्सिफाइड में मोनोपोली नहीं होती है एक इंडिविजुअल या उसकी, सो दैट इज गुड फॉर कंपनी इन लॉन्ग रन। प्रमोट स्टेबल लॉन्ग टर्म लेंडिंग, ठीक है, अब पैसा बाहर से आ रहा है तो एक लेंडिंग ही है, सो इट इज अ लॉन्ग टर्म लेंडिंग, अनलाइक कि हम लोन ले रहे हैं। प्रोवाइड्स फाइनेंसेस टू डेवलपिंग कंट्री, इंडिया जैसी कंट्री, हमको फाइनेंसेस बहुत सारे चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, एंड फॉर दैट गवर्नमेंट के पास लिमिटेशन है इन्वेस्टमेंट का, सो नेचुरली इन्वेस्टमेंट कमिंग फ्रॉम आउटसाइड विल हैव अ वेरी पॉजिटिव एंड सैल्यूटरी इफेक्ट इन द इकोनॉमी। सो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में होगा, व्हिच इज गुड। प्रोवाइड टेक्नोलॉजी डेवलपिंग कंट्रीज, मान लीजिए कोई बाहरी कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करती है, स्टारबक्स आती है और वो टाटा के साथ कोलैबोरेट करती है, तो वो अपना टेक्नोलॉजी लेके आएगी, अपना वर्क कल्चर लेके आएगी, यू नो, एन नंबर ऑफ थिंग्स कैन बी देयर। देन नॉट्स, कॉन्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है, तो ये तो पॉजिटिव्स हैं। नेगेटिव है, नॉट सूटेबल फॉर स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज। अभी कोई बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, मान लीजिए स्पेस प्रोग्राम है, सो स्पेस प्रोग्राम में एक फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट करती है, एंड दे प्रैक्टिकली, लेट्स से दे हैव अ कंट्रोल ऑन द स्पेस इंडस्ट्री, और ये फॉरेन कंपनी है, इंडियन कंपनी नहीं है, तो दैट इज नॉट गुड, बिकॉज शायद दिस ये स्पेस इंडस्ट्री या कोल इंडस्ट्री या फिर एटॉमिक एनर्जी इंडस्ट्री, ये सब स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए या इंडियन फर्म से कंट्रोल होना चाहिए, बिकॉज वंस अ फॉरेन कंपनी कंट्रोल्स इट, देन इट माइट हैव सिक्योरिटी इंप्लीकेशन, उसकी वजह से सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस लॉन्ग टर्म हो सकते हैं। इन्वेस्टर में हैव लेस मॉरल अटैचमेंट, एक फॉरेन कंपनी जब इंडिया में इन्वेस्ट करती है, सो देयर ऑब्जेक्टिव इज टू हैव अ लॉन्ग टर्म अप्रोच, वो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं और वो प्रॉफिट कमाना है हमको, ठीक है, तो उनका एक मॉरल अटैचमेंट नहीं होता है, अनलाइक अ इंडियन इन्वेस्टर। देन अनएथिकल एक्सेस टू लोकल मार्केट, कई बार ऐसा होता है फॉरेन कंपनी आती है, वो इंडियन बिना कुछ किए, एक कंपनी ने 10 इयर्स में एक कंपनी को खड़ा किया है, और ये आती है फॉरेन कंपनी, उसको परचेज कर लेती है, और कई बार इट इज नॉट गुड फॉर द मार्केट्स, इट इज नॉट गुड फॉर, बिकॉज ये जो बड़ी कंपनीज होते हैं, दे ईट द स्मॉलर कंपनीज, बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को खा जाती है, so that is one negative aspect of badi companies coming to India, or for that matter any developing nation, because MNCs are very big huge investment, technology, resources, बाद में वो मार्केट को कंट्रोल करती हैं, मैनिपुलेट करती हैं, तो ये सारे एस्पेक्ट भी नेगेटिव हो सकते हैं। सो दीज आर FDI, ये पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस आर्टिकल, ये जो एनालाइज करता है, तो इनका कहना है दैट इंक्रीज रिपेट्रिएशन एंड इन डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है, यानी जो पैसा आया है FDI में, वो तो 47% उसमें रीपैट्रिएशन या डिसइन्वेस्टमेंट वाला पैसा है। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करती है, FDI करती है, सो दे विल, मान लीजिए उन्होंने 100 करोड़ इन्वेस्ट किया,
कंपनी में इन्वेस्ट किया, बाद में कंपनी को प्रॉफिट होता है, कंपनी के प्रॉफिट को वो वापस लेके जाते हैं, राइट? सो दे रीपैट्रिएट, बिकॉज जो एफडीआई कर रही है ये फॉरेन कंपनी है, और फॉरेन कंपनी अपने ओरिजिनल होम नेशन में पैसा वापस लेके जाती है। कई बार तो ये प्रॉफिट लेके जा रहे हैं, जब ये प्रॉफिट लेके जाते हैं तो उसको हम रीपैट्रिएशन या डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं, हमारी इंडिया से पैसा वापस जा रहा है। सो ये कहा गया कि भाई इसमें एफडीआई तो बढ़ा है, बट ओवरऑल देयर हैज बीन इंक्रीज इन डिसइन्वेस्टमेंट रिपेट्रिएशन, यानी पैसा वापस गया है, व्हिच इज ऑलमोस्ट 27 बिलियन इन द करंट फिस्कल। और नेट अगर हम बात करते हैं, इफ आई कंपेयर द लास्ट ईयर का जो पैसा वापस गया है, रिपैट्रिएशन, डिसइन्वेस्टमेंट इज ऑपोजिट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना? तो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट वापस जा रहा है। सो एफडीआई फ्लोज हैव एक्चुअली डिक्लाइंड। अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं नेट का, तो लास्ट ईयर कंपैरिजन में जो नेट पैसा वापस गया है वो 2.4 ज्यादा गया है कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। The sustained sizable repatriation of long-term FDI does not bode well for Indian economy. तो ये जो पैसा जनरेट किया है, एक तरफ अच्छी बात है that FDI comes to India, इंडिया में इन्वेस्टमेंट होगा, टेक्नोलॉजी आएगी, रिसोर्सेज बढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, बट एट द सेम टाइम हमेशा के लिए वो कंपनी हमेशा अपना प्रॉफिट वापस लेके जाएगी। कई बार प्रॉफिट लेके नहीं भी जाते हैं, दे कीप द प्रॉफिट इन द होम कंट्री फॉर वेरियस रीजन। कई बार एक्सचेंज रेशियो में लॉस हो सकता है, तो इसलिए कंपनीज नहीं भी करती है। बट इवेंचुअली जो ओरिजिनल कंपनी है उसका बेस लोकेशन कहीं और है, मे बी इट्स अ यूएस बेस्ड कंपनी। सो अगर मैकडॉनल्ड्स इंडिया में इन्वेस्ट करता है तो वो चाहेगा कि मैकडॉनल्ड्स का जो अर्निंग पैसा है वो वापस लेके जाए। सो दैट वे जो इंक्रीज रिपैट्रिएशन या डिसइन्वेस्टमेंट होता है वो इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता है। दैट इज व्हाट इकोनॉमिस्ट फील। बट सीधी सी बात है, कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो अपना पैसा वापस भी लेके जाएगा प्रॉफिट के फॉर्म में, बिकॉज दैट इज द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। देन हाई प्रोपोर्शन ऑफ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। क्या मैंने कहा, जो पैसा आया है उसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो नेचर का है, विच मीन्स वो डाइवर्सिफाइड है, ठीक है? सो इसमें एफआईआई काफी बढ़ा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है काफी बड़े हैं। ये एफआईआई जैसा मैंने बताया कि मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं, एंड व्हेन द मार्केट गो अप, अभी मार्केट का जो एक बुल रन चल रहा है, बुल रन मींस मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है, इन स्पाइट ऑफ द कोविड पैंडेमिक, इन स्पाइट ऑफ इकोनॉमी श्रिंकिंग, मार्केट 50,000 प्लस गया है। तो ये एक इट्स नॉट अ गुड साइन। और अदर कुछ लोग कहते हैं कि मार्केट में बबल है। बबल है मतलब कि वो जो ग्रोथ है जो दिख रहा है मार्केट में, दैट इज बेस्ड ऑन फॉल्स पैरामीटर्स, वो कभी भी गिर सकता है, मार्केट माइट क्रैश टुमारो। सो ये जो इन्वेस्टर्स हैं, ये इन्वेस्टमेंट जो हुए हैं वो पोर्टफोलियो नेचर के हैं, एंड ये जो पैसा है वो स्पेकुलेटिव है। मान लीजिए बहुत सारा पैसा $5 बिलियन एक मंथ में आया बाहर से, ठीक है, आया, और इसकी वजह से एक पॉजिटिव सेंटिमेंट जनरेट हुआ एंड स्टॉक गोज अप। जब स्टॉक ऊपर जाता है तो हम कहते हैं स्टॉक्स में बुल रन हो रहा है। बुल रन मतलब कि स्टॉक मार्केट प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, अब लोगों को फायदा मिलता है। बट एक और नुकसान है, मान लीजिए किसी कारण सब नेगेटिव होता है, मान लीजिए पैंडेमिक सेकेंड वेव आ गया या थर्ड वेव आ गया, सो इन दैट सिचुएशन सडनली ये जो प्राइस जो इन्वेस्ट हुआ है तो एक नेगेटिव सेंटिमेंट डेवलप होगा, और इनको लगे शायद रिटर्न हमें अच्छा नहीं मिल रहा है, तो ये वापस पैसा लेके जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल उनको लगता है यूएसए में ज्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा, सो दे विल लीव इंडियन स्टॉक मार्केट एंड गो टू यूएसए स्टॉक मार्केट। तो अगर यूएसए के स्टॉक मार्केट में वापस जाएंगे तो सडनली ये $5 बिलियन जो शायद स्टॉक ऊपर होने की वजह से $6 बिलियन हो गया है, वो वापस लेके जाएंगे। तो सडनली एक तरह से इकोनॉमी के लिए एक तरह से क्रैश कर सकता है इकोनॉमी, या फिर एक बहुत ही एक तरह से पॉजिटिव हुआ और फ्लक्चुएशंस जो है स्टॉक मार्केट में देखने को मिलेंगे। सो देयर इज लार्ज इंक्रीज इन स्पेकुलेटिव कैपिटल व्हिच इज नॉट गुड फॉर इकोनॉमी रिकवरिंग फ्रॉम इकोनॉमिक स्लम। एक तरफ इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हमारे रिकवर कर रहे हैं या वीक हैं, एट अदर एंड स्टॉक मार्केट अनयूजुअली परफॉर्म कर रहा है, सो दिस इज नॉट गुड फॉर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वो लॉन्ग टर्म जो है नहीं होता, उनका शॉर्ट टर्म अप्रोच होता है, सो दैट इज रॉन्ग। Then in principle private equity fund do not make long term greenfield investment. अभी जो फंड्स आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, let's understand the dynamic. Shubham has a question, if major part was portfolio investment why did RBI include it? नहीं, FDI कैलकुलेशन भी है, और वो FDI के साथ साथ वो ये भी बता रहे हैं कि जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है उसकी बात कर रहे हैं शुभम। ओके, नाउ कमिंग टू ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। अभी जो एफडीआई है, एफडीआई फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दो तरह का होता है, वन इज कॉल्ड ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट एंड सेकंड इज कॉल्ड ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। तो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। जो ग्रीनफील्ड होता है, इट इज अ फ्रेश इन्वेस्टमेंट,
लेट्स से कंपनी स्क्रैच से स्टार्ट हो रही है, तो अब जीरो से फॉरेन कंपनी आई, उसने जीरो से स्टैब्लिश किया, दैट इज फ्रॉम स्क्रैच। अब इसमें क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, जब इन्वेस्टमेंट होगा तो जॉब क्रिएशन होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट इज डिजायरेबल, ब्राउनफील्ड में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म में होता है। सो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म में होता है, विच मींस कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, सो मे बी एक्सपेंशन हो सकता है, यहाँ भी नया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सकता है। बट ब्राउन फील्ड जो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट हुआ है वो ग्रीन फील्ड नहीं हुआ है, वो मेनली ब्राउन फील्ड हुआ है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म में हुआ है। और कुछ कंपनीज में ऐसे 4-5 कंपनीज हैं जहां पे इन्वेस्टमेंट हुआ है। वन बिग एग्जांपल इज रिलायंस जियो। रिलायंस जियो ने लगभग 1.5 लाख करोड़ रेज किया है बाय सेलिंग 33% शेयर। अपना 33% उन्होंने शेयर सेल किया है फेसबुक को, गूगल को, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। तो ये क्या है, ये पैसा कोई इन्वेस्टमेंट थोड़ी हो रहा है, बेसिकली रिलायंस अपने शेयर्स उनको बेच दे रहा है और वो पैसा उनके पास आ गया। अब ये पैसा, वो ऐसा नहीं कि रिलायंस जियो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो पैसा अपना डेट यानी जो कर्ज है उसको खत्म करने के लिए, कम करने के लिए वापस कर रहे हैं। सो ये जो इन्वेस्टमेंट आया है, दैट इज, इट इज नॉट जॉब नहीं क्रिएट कर रहा है, नया टेक्नोलॉजी लेके नहीं आ रहा है। यस, हो सकता है कि कुछ डेट कम हुआ हो तो मे बी रिलायंस के पास एक्स्ट्रा फंडिंग हो तो वो लॉन्ग बाद में इन्वेस्ट करे, बट अभी तो यही शो हो रहा है दैट रिलायंस इज रेजिंग कैपिटल बिकॉज रिलायंस हैज ए इंटेंशन टू बी डेट फ्री। क्योंकि रिलायंस के शेयर होल्डर्स को उनकी ओनर्स ने, मुकेश अंबानी ने कहा कि भाई हम आपको डेट फ्री बना देंगे कंपनी को। अब रिलायंस इतना बड़ा हो गया, रिलायंस जियो अभी 4-5 साल पहले आया, 2016 में आया, एंड दे वेटेड कि जब कंपनी बड़ी हो जाएगी तब हम कुछ शेयर जो है उसके बेचकर हम पैसा रेज करेंगे। सो ये जो फंड आया, सो दिस इज लाइक अ प्राइवेट इक्विटी फंड। प्राइवेट इक्विटी फंड फर्म जो है वो इन्वेस्ट करती है, इक्विटी मतलब शेयर्स में इन्वेस्ट करती है, and they do not make long term investment, hence they do not add much to fixed investment output growth and employment creation। यानी इस इन्वेस्टमेंट से इकोनॉमी को ऐसा कोई फायदा नहीं हो रहा है। इन्वेस्टमेंट तो आ रहा है, कंपनी के पास पैसा भी आ रहा है, मे बी गवर्नमेंट को शायद टैक्स भी अच्छा मिलेगा, बट द पॉइंट हियर इज दैट आर दे हेल्पिंग इकोनॉमिक आउटपुट टू ग्रो? बिकॉज अगर इकोनॉमिक आउटपुट ग्रो करेगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, सो दैट इज नॉट हैपनिंग। सो जो ये यूफोरिया है, खुश होने की बात है, वो वो इतना अच्छा नहीं है। द सेकंड इज स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। जो एफडीआई है वो काफी स्क्यूड है। स्क्यूड मतलब कुछ कंपनीज में है, फॉर एग्जांपल अगर एफडीआई की बात करते हैं, टॉप 5 डील्स अकाउंटेड फॉर सब्सटैंशियल शेयर, यानी टॉप 5, रिलायंस का मैंने एग्जांपल दिया कितना बड़ा था, फिर बायजूस में और भी कुछ स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट हुए। तो ये आरबीआई कहती है कि भाई ये जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज वेरी लॉपसाइडेड। आप 5 कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, यू आर नॉट इन्वेस्टिंग sectorally in all the economy or rather in every part of the business, so that is not good, which means there's a concentration of FDI flows in only certain areas। तो ये जो skewed distribution है, ये एक weakness है इस FDI का। अगर इन्वेस्टमेंट ऐसा होता कि अक्रॉस इकोनॉमी को हेल्प कर रहा है, अक्रॉस सेक्टरल इन्वेस्टमेंट है, सेक्टरल मतलब हर सेक्टर में जा रहा है, देन इट इज ओके। बट ये स्पेसिफिक था दैट टू सर्विस सेक्टर, उसमें भी टेक्नोलॉजी एरियाज में इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है, अनलाइक इन्वेस्टमेंट हैपनिंग इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, या फिर हम फैक्ट्रीज इंडिया में डेवलप हो रही है, वो सब नहीं हो रहा है। So that way the distribution is skewed। skewed मतलब lopsided, ठीक है। skewed का मतलब है lopsided। lopsided मतलब एक ही एरिया में, मान लो ये पूरा इंडिया के सबमर्ज सेक्टर्स है तो ये कुछ ही सेक्टर में हो रहा है, बाकी ये सेक्टर्स लेफ्ट आउट है। सो दैट इज skewed distribution। अगला है डाउट्स ओवर प्रोडक्टिवनेस ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट्स। ये बात हो रही है कि भाई इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में आ रहे हैं, ये मैंने एग्जांपल दिया रिलायंस वाला, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, मेयर शेयर ऑफ ट्रांसफर विदाउट क्रिएटिंग एनी प्रोडक्टिव एसेट्स इन द कंट्री। हम कोई प्रोडक्टिव एसेट कंट्री में डेवलप नहीं कर रहे हैं, एंड दिस इज मेनली, तो सच इन्वेस्टमेंट इज इनइफेक्टिव इन रिवाइविंग द इकोनॉमी। इकोनॉमी को रिवाइवल में हेल्प नहीं कर रहा है। रिलायंस के पास पैसा आया, रिलायंस केप्ट दैट मनी एंड रिलायंस ने वो पैसा जो है आपको अपने अपने कर्ज को वापस कर लिया, डेट कम कर दिया, बट रिलायंस उस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है या फिर कंपनीज एक्सपेंशन में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। सो इट विल नॉट क्रिएट पॉजिटिव इफेक्ट टू रिवाइवल ऑफ द इकोनॉमी। सो दैट इज द अदर डाउट। थर्ड इज कंसर्न्स एसोसिएटेड विद एक्विजिशन फ्लो। ये एक्विजिशन रिलेटेड इनफ्लोज जो हैं वो ऑलरेडी हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर रिलायंस जियो को का 33% अभी किसी और कंपनी के पास चला गया है, सो दैट मीन्स कल को मे बी वो बढ़ सकता है। देयर इज ऑलवेज अ फियर दैट टुमारो अ बिगर कंपनी माइट कम एंड माइट टेक ओवर द एंटायर कंपनी। सो इंडियन कंपनी वो फिर फॉरेन कंपनी हो जाएगी। So increased foreign asset will not only lead to outflow of profit but also result in increased influence of such investor in Indian business। कल को वो कंपनी को कंट्रोल करेंगे, प्रॉफिट्स भी वापस लेके जाएंगे। So from that perspective FDI का ये नेगेटिव भी होता है, भाई कोई कंपनी आए और
इंडियन कंपनी को परचेज कर ले। अभी हम बात करते हैं इंडियन, अगर मैं सॉफ्ट ड्रिंक की मैं बात करता हूँ, सो आपका पेप्सी एंड कोक, बोथ आर फॉरेन कंपनी। क्या इनके इनके होने से क्या कोई इंडियन कंपनी सर्वाइव कर पाएंगे सामने? कोई भी नहीं है। गिव मी एन एग्जांपल व्हिच आर अगेंस्ट देम इंडियन ऑप्शन। और कोई थोड़ा बड़ा जूस बेच रहे हैं वो अलग बात है, बट डू वी हैव सॉफ्ट ड्रिंक व्हिच इज इक्विवेलेंटली पॉपुलर एज पेप्सी एंड कोक एंड दे कैन टेक ऑन सच बिग प्लेयर? नहीं। तो ये पूरा मार्केट ही इनके हाथ में है, एंड दैट इज अ रियलिटी। कल को ये इंडियन बिजनेस को इम्पैक्ट करेंगे। इनफैक्ट फॉरेन कंपनीज इंडियन कंपनीज को खा जाती हैं, ये भी सही बात है। तो these are things which are not good. Then concerns over regional distribution. ये जो FDI आया है, that is concentrated mostly in Gujarat, Maharashtra and Karnataka. Almost 75% से ऊपर गुजरात, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में है, which means जो इन्वेस्टमेंट आया है वो पूरे बाकी इंडिया में 23% है। सो ये अगेन एक skewed पैटर्न है in certain states only, and hence it will lead to unbalanced growth. अगर इन्वेस्टमेंट सिर्फ आपका गुजरात में जा रहा है, महाराष्ट्र में जा रहा है, कर्नाटका में जा रहा है, तमिलनाडु में जा रहा है, they account hardly 10-15% of India's population, or maybe 20%. What about other part of India? So ये एक reality भी इस FDI flow का देखने को मिलता है. So record FDI flow in 2021 cannot be cause of celebration as it is revealed by closer analysis of FDI inflows. The government must focus on attracting FDI into India through appropriate interventions. Usually इंडिया में जो आते हैं वो ऑटोमेटिक रूट के थ्रू आते हैं। ऑटोमेटिक मतलब गवर्नमेंट ने कह दिया कि ये रूट ऑटोमेटिक है, यानी यहाँ से कोई अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा रूट ऐसा होता है जहां गवर्नमेंट अप्रूव करती है। अ वेरी गुड एग्जांपल इज राइट नाउ जो चाइनीज एफडीआई इंडिया में आ रहे हैं वो सारे गवर्नमेंट रूट से कर दिए गए। लास्ट ईयर जब एचडीएफसी के कुछ शेयर्स को चाइनीज इन्वेस्टमेंट से परचेज किए गए थे, तो गवर्नमेंट को एक सडनली एक तरह से उन्होंने एक तरह से इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए कि अप्रूवल हम देंगे तब आप करोगे। सो दैट इज हाउ द एफडीआई फॉर इन्वेस्टमेंट इंडिया में आता है, ऑटोमेटिक रूट के थ्रू, गवर्नमेंट रूट के थ्रू। ऑटोमेटिक रूट में भी ऐसा होता है कि 100% एफडीआई होता है या 74% एफडीआई होता है। जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर है, टेलीकॉम सेक्टर है, तो यहाँ पे कोई कंपनी 0 से 100% इन्वेस्ट कर सकती है। या फिर इंश्योरेंस सेक्टर है तो वहाँ मैक्सिमम 74% इन्वेस्ट कर सकती है। सो इस तरह से ऑटोमेटिक रूप में भी गवर्नमेंट डिफाइन करती है कि भी कितना आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, सो दैट वी कैन पुट अ लिमिट ऑन इन्वेस्टमेंट आल्सो कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। सो दैट इज अबाउट द रिकॉर्ड एफडीआई इनफ्लोज। ठीक है, तो आई होप ये अंडरस्टैंड हुआ। किसी को दिक्कत, एनी कंफ्यूजन, एनीबॉडी? मैंने अनम्यूट भी कर दिया है, किसी को डाउट होगा तो बीच में ही पूछ सकता है। चलिए, सो समझ में आ गया सभी लोगों को? इज इट क्लियर एवरीबॉडी? एनी कंफ्यूजन? ये आर्टिकल थोड़ा टेक्निकल है, इसको पढ़िएगा, एंड इफ यू हैव नॉट रेड द आर्टिकल, आई थिंक अब आर्टिकल समझ में आ जाएगा। देन कमिंग टू द डायरेक्ट टैक्स रिसीप्ट। सो टैक्स के बारे में थोड़ा सा बताता हूं। सो टैक्स एक तरह से पेमेंट्स है गवर्नमेंट को, and these payments are to ensure that government is able to run itself, और फिर गवर्नमेंट आपका वेलफेयर करेगी। सो टैक्स दो तरह का होता है, इनडायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स। टैक्स पेमेंट्स में हम सभी लोग टैक्स पे करते हैं, और व्हेन वी पे टैक्सेस, इसमें दो कंपोनेंट याद रखिएगा, एक है बर्डन, सेकंड इज लायबिलिटी। यानी जब आप टैक्स पे करते हैं तो उसमें दो ही कंसेप्ट आते हैं, बर्डन या लायबिलिटी। सो लेट्स से आपने एक मोबाइल खरीदा, और जब आपने एक मोबाइल खरीदा तो उस पर टैक्स रेट डिफाइंड है, आपने टैक्स भी पे किया। बर्डन किसके ऊपर है? आपके ऊपर है, बर्डन ऑन कस्टमर। बट क्या आप ये टैक्स गवर्नमेंट को जाकर पे करते हो? नहीं। ये जो मोबाइल का टैक्स है, जैसे लेट्स से जीएसटी है, तो ये पे करने की लायबिलिटी जो है वो किसकी है? दैट इज बाय द सेलर, यानी सेलर उसको पे करता है। जहां से आपने दुकान से खरीदा है तो वो सेलर आपसे वो पैसा लेके वो गवर्नमेंट को पे करेगा इन जीएसटी फॉर्म। तो दैट इज बर्डन एंड लायबिलिटी। तो ये जो पेमेंट्स हैं ऐसे, इनको बर्डन लायबिलिटी, जब अगर बर्डन जो है लायबिलिटी अलग अलग लोगों पे है, बर्डन कस्टमर पे है, लायबिलिटी सेलर पे है, तो इसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहेंगे। डायरेक्ट टैक्स ऐसा होता है वेयर बर्डन एंड लायबिलिटी इज ऑन द सेम इंडिविजुअल। एग्जांपल देता हूं, लेट्स से यू हैव इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स कौन पे करता है? आप पे करते हो। तो बर्डन किसके ऊपर है? सिटीजन के ऊपर है। तो बर्डन सिटीजन के ऊपर है, ठीक है, आप ही पे कर रहे हो, आप ही के ऊपर बर्डन है। लायबिलिटी किसके ऊपर है? आप ही को पे करना है, आप ही को जाना है, यू हैव टू, आपको आईटीआर फाइल करना है, ठीक, अगेन सिटीजन पे है। सो द बर्डन एंड लायबिलिटी इज ऑन द सेम इंडिविजुअल, वो सेम पर है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट टैक्स कहेंगे। सो कोई भी टैक्स जब देखो
तो ट्राई टू लुक कि बर्डन किसके ऊपर पड़ रहा है, लाइबिलिटी किसके ऊपर पड़ रहा है. अगर बर्डन लाइबिलिटी इज ऑन द सेम इंडिविजुअल, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स. एंड इफ अ टैक्स ऐसा नेचर है जहां पर बर्डन अलग पे है और लाइबिलिटी अलग पे है, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स नेचर होता है. तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दो तरह के टैक्सेस होते हैं जो नॉर्मली आपको देखने को मिलते हैं. बिगेस्ट पार्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स. सो दैट इज, लेट्स अंडरस्टैंड हुआ क्या है. द न्यूज हैज कम दैट डायरेक्ट टैक्स जो है, जो ये कोविड-19 के पीरियड में एक बढ़ा है. देयर हैज बीन सर्ज इन द direct tax because of healthy exports and dispute resolution schemes impact. अभी 2 महीने के अंदर, मतलब अप्रैल, मई एंड जून, 2.5 months, the direct tax collection has been 1.86 lakh crore, or double the collection of last year. Last year में जो collection हुआ था उसका almost double हुआ है, and that is because of healthy exports, continuation of various industrial and construction activities. This supports our expectation that GDP will record double-digit expansion. इसका मतलब ये है कि इसका पॉजिटिव है कि GDP double-digit expansion जो है इससे होगा, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है. What are direct taxes? मैंने बताया, direct tax is a tax where impact and incidence fall in the same category. Is a direct tax. The tax is paid directly by the organization or individual to the entity that has imposed the payment. हम directly government को pay करते हैं. The tax may be paid directly to the government and cannot be paid to anyone else. आप सीए को कॉन्टैक्ट करते हो, सीए आपके नाम पे वो टैक्स पुट करता है. किन तरह के डायरेक्ट टैक्स होते हैं? मल्टीपल टाइप होते हैं. एक होता है इनकम टैक्स, जो आपकी इनकम पे लगता है, जो आपका पूरा एनुअल इनकम होता है, आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, और उसमें टैक्स ब्रैकेट्स हैं. 5 लाख तक 0% है, फिर उसके ऊपर परसेंटेज चेंज होता रहता है, अकॉर्डिंगली यू पे. देन वेल्थ टैक्स है, वेल्थ या प्रॉपर्टी भी देते हो. एस्टेट टैक्स है, ये सब अबॉलिश हो गया है, सब इनकम टैक्स में मर्ज हो गया है. लेकिन वेल्थ टैक्स, एस्टेट टैक्स पहले लगता था, अगर आपके पास बहुत स्टेट है, आप कोई राजा महाराजा हो या फिर दीवान हो. कॉर्पोरेट टैक्स कंपनीज पे करती हैं, ठीक है, जो भी फर्म्स होती हैं, कंपनीज होती हैं, दे पे कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है ना, वो अपने प्रॉफिट का कुछ सर्टेन पार्ट देते हैं. देन हमारे और भी टैक्स होते हैं डायरेक्ट टैक्स. सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, आप शेयर्स परचेज कर रहे हो, तो शेयर्स परचेज करते हो तो जो वॉल्यूम ऑफ शेयर्स होता है, मान लो आपने 1 लाख का शेयर खरीदा, तो उस पर आपको एससीटी देना होता है. सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन, यानी सिक्योर शेयर्स को आप सिक्योरिटीज बोलते हैं, तो वो जो ट्रांजैक्शन टैक्स होता है उसको हम सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बोलते हैं. बहुत माइनर होता है, 0.01% के आसपास देना होता है. देन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, कंपनी, आप एक कंपनी के शेयर होल्डर हो, ठीक है. अब कंपनी आपको, बिकॉज यू आर शेयर होल्डर, कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट आपको पे कर रही है. सो व्हेन द कंपनी पेज इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, उसको हम डिविडेंड कहते हैं, और इसको हम बोलते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स. इस पे गवर्नमेंट थोड़ा टैक्स लगाती है. देन वी हैव फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, ये अबॉलिश हो गया है. ये बेसिकली वो टैक्स होता है जिसमें कंपनीज जब बेनिफिट देती हैं अपने एम्प्लॉइज को, तो उस पर भी गवर्नमेंट जो है टैक्स लगाती है. तो ये भी अबॉलिश हो गया इस वक्त. इसमें वेल्थ टैक्स नहीं है, स्टेट ड्यूटी नहीं है, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स भी नहीं है. मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स होता है, एक और तरह का डायरेक्ट टैक्स होता है, जीरो टैक्स कंपनीज को होता है. कैपिटल गेन्स टैक्स, मतलब आपने कोई लैंड या प्रॉपर्टी परचेज किया और आपने उसको सेल किया, 10 लाख का खरीदा, 20 लाख में बेच दिया. मार्केट वैल्यू 15 लाख है, बट आपने 5 लाख अधिक में बेचा, यानी आपको 5 लाख का कैपिटल गेन्स हुआ. तो ऐसे में क्या होगा, कैपिटल गेन, यानी आपकी पूंजी बढ़ी है. इफ द कैपिटल गोज अप एज पर गवर्नमेंट एस्टिमेट, तो आपको उस पर टैक्स पे करना होता है. तो दीज आर डायरेक्ट टैक्सेस. तो ये हम लोग जब पढ़ेंगे टैक्सेशन, तो उसमें हम डिटेल में देखेंगे, बट दीज आर डायरेक्ट टैक्सेस. ठीक है, सो क्लियर हो गया आई थिंक. एनी कंफ्यूजन? Now let's go and see the last article. The last article talks about recovery and reform. अभी इकोनॉमिक रिकवरी एंड इज मोर, ये आर्टिकल ये कहते हैं रिकवरी इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिफॉर्म्स. एफबीडी टैक्स, अच्छा है, चलो राबिया ने पूछा है, एफबीडी टैक्स समझा दीजिए. फ्रिंज बेनिफिट टैक्स. बेटा पहले तो ये टैक्स पहले लगता था, अभी लगता नहीं है, बट थोड़ा समझा देता हूँ. संडे है. लेट्स से एक कंपनी आपको हायर करती है और आपको सैलरी देती है 40,000, बट लेकिन जब आपको सैलरी आती है तो सैलरी आपके हाथ में आती है 30,000. तो कंपनी कहती है, आप कहते हो अरे मेरे तो सैलरी 40,000 था. कंपनी ने कहा अरे हम आपको 10,000 का फ्रिंज बेनिफिट दे रहे हैं. आपने कहा ये क्या है? तो फ्रिंज बेनिफिट जैसे कि हम आपको जिम का मेंबरशिप दे रहे हैं, हम आपको कोई आपको कुछ, आपका हाउस रेंट में हम आपको 10% डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं, वहां पे कर रहे हैं. तो इस तरह के ये फ्रिंज बेनिफिट होता है जो एम्प्लॉइज को कंपनीज पे कर सकती हैं. तो पहले क्या था, कंपनीज अपने
टैक्स को बचाने के लिए एम्प्लॉइज को बहुत सारा बेनिफिट फ्रिंज फॉर्म में देती थी, फ्रिंज बेनिफिट फॉर्म में, एंड व्हेन दे गेव इन द फ्रिंज बेनिफिट फॉर्म, द कंपनीज वर एबल टू रिड्यूस देयर इनकम, वो टैक्स कंपोनेंट्स में सेविंग करते थे। तो गवर्नमेंट अब जैसे मान लो आप 30,000 कमा रहे हो तो आप कम टैक्स दोगे, 40,000 कमा रहे हो तो ज्यादा टैक्स दोगे, बट आपको 10,000 वो फ्रिंज बेनिफिट में जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने इस प्रैक्टिस को डिसकंटिन्यू करने के लिए एक टैक्स लाया, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, व्हिच मींस कंपनीज विल हैव टू पे सर्टेन टैक्स ऑन दीस बेनिफिट। और आप भी नाराज हो गए, आप कहोगे यार 40,000 हमें नहीं चाहिए जिम मेंबरशिप, हमें नहीं चाहिए हाउस का बेनिफिट, आप हम अपने हिसाब से रहेंगे। बट कई बार ऐसा होता है कि यू डोंट हैव एन ऑप्शन, कंपनीज आर टू बिग, आप कंपनी से नेगोशिएट नहीं कर पाओगे, कंपनी का जो ऑफर देगा आप वही आपको एक्सेप्ट करना होता है। तो ये फ्रिंज बेनिफिट टैक्स गवर्नमेंट डिस्करेज करने के लगाती थी कंपनी को, ताकि कंपनीज लोगों को इन हैंड सैलरी ज्यादा दें रादर देन जो है फ्रिंज बेनिफिट के फॉर्म में दे। तो इस पे जो है टैक्स जो लगता था फ्रिंज बेनिफिट टैक्स लगता था, और तो गवर्नमेंट ने इसको लगाया सो दैट गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन बढ़े। सो दैट इज अबाउट द फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। अभी वो हटा लिया गया है बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। रिकवरी टेक मोर देन रिफॉर्म। अभी क्या हुआ है, ग्रोथ एस्टिमेट जो आया था पहले, वो अब उतना अच्छा नहीं रहेगा, बट स्टिल वी आर होपिंग ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी। सेकेंड वेव ने इट इम्पैक्टेड द डायनेमिक्स, डिफरेंट डिफरेंट डेटा आए हैं। आरबीआई का भी कहना था कि 2 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, कुछ का कहना था कि 2% ऑफ जीडीपी का लॉस हुआ है। ओके, these things only time will tell, but second wave has adversely impacted the economy, और हमारा इकोनॉमिक रिवाइवल जो था वो काफी बेटर लग रहा था। हम अब जैसे क्या हुआ, फर्स्ट वेव में इकोनॉमी डिप हुई और फिर रिकवरी होना स्टार्ट हो गई। अभी फर्स्ट वेव में इकोनॉमी डिप हुई, रिकवरी हो रही थी, तो सेकंड वेव आ गया, फिर इकोनॉमी डिप हो गई और फिर अब रिकवरी का चांस हो रहा है। अब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये वी शेप है, ये दिस वी शेप रिकवरी, इकोनॉमी डिप हुई पैंडेमिक से एंड देन रिवाइवल हुआ, इकोनॉमी डिप हुई, सेकंड वेव आ गया, फिर डिप हो गई, फर्स्ट वेव सेकंड। तो हम कह रहे हैं कि, तो ये आर्टिकल ये कह रहा है हिंदू का, दैट रिवाइवल इज नॉट वी शेप, इट इज डब्ल्यू शेप। तो डब्ल्यू शेप रिवाइवल हो रहा है बिकॉज ऑफ द सेकंड वेव, अनलाइक हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वी शेप होगा। जो भी एस्टिमेट्स थे गवर्नमेंट के या फिर इंटरनेशनल बॉडीज के, आईएमएफ के, वर्ल्ड बैंक के, ऑल ऑफ देम वर वी शेप, बट हो क्या रहा है, नाउ वी माइट विटनेस अ डब्ल्यू शेप इकोनॉमिक रिकवरी। और ये आर्टिकल एनालाइज कर रहे हैं कैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज होनी चाहिए एंड हाउ उसका इम्पैक्ट रिकवरी प्रोसेस पे कैसा होता है। ना रिकवरी इज अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। इकोनॉमी डिप था, और इकोनॉमी डिप इसलिए था कि मार्केट को गवर्नमेंट ने क्लोज कर दिया था। इफ गवर्नमेंट इज क्लोजिंग द मार्केट विद द इंटेंशन दैट वे कि कोविड को हम पैंडेमिक को कंट्रोल करें, इट इम्पैक्ट्स इकोनॉमी। बट जैसे इकोनॉमी को ओपन करोगे रिकवरी होगा। अब गवर्नमेंट का कहना है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हम बहुत सारे कर रहे हैं, यानी हम इकोनॉमिक में रिफॉर्म्स इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, एंड दोज रिफॉर्म्स विल ब्रिंग ग्रोथ इन लॉन्ग टर्म, या लॉन्ग टर्म जो है रहेगा। तो गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड नंबर ऑफ रिफॉर्म्स इन द इकोनॉमिक स्फीयर एंड होप्स दैट इट विल इंश्योर इकोनॉमी रिकवर्स। क्या क्या हुआ है, अभी आपके 3 एग्रीकल्चरल जो है लॉज पास हुए हैं, देन प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, पीएलआई स्कीम को किया गया है ताकि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव हो। आत्मनिर्भर भारत के बहुत सारे पैकेजेस किए गए हैं गवर्नमेंट ने। पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज कर रही है गवर्नमेंट को। कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया है ताकि फॉरेन कंपनीज इंडिया में आए, या इंडियन कंपनीज कम टैक्स पे करेंगे तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे। सो ऑल दीज रिफॉर्म्स विल इंश्योर द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड द बिजनेस विल ग्रो इन जनरल, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, जॉब्स क्रिएशन होगा, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। These reforms have helped remove restrictions on private sector activity and helped incentivize private participation in the economy. इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि इससे जो है प्राइवेट सेक्टर का ग्रोथ होगा, प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा, बट इकोनॉमी लॉन्ग रन में रिवाइव होगी। बट ये प्रॉब्लम शॉर्ट टर्म है। आपने इकोनॉमी में जो पैंडेमिक आया, इट इज लाइक अ शॉक टू द इकोनॉमी। अभी चलते चलते सब कुछ बंद हो गया। यू नो आफ्टर होली, जब आने वाली थी, तो मैंने प्लान किया था कि मैं 19 को हमने डेट भी डिसाइड कर दिया था कि हम ऑफलाइन सेंटर अपना खोलेंगे जीटीबी नगर में, एंड एवरीथिंग वाज अंडर प्लान। बट जैसे ही वे केसेस बढ़ने लगे तो हमने कहा वेट एंड वॉच मोड में चले गए, एंड तब तक कोविड इतना हैवी आया, मैं खुद इम्पैक्ट हो गया कोविड से। मेरे टीम में ऑलमोस्ट 70% लोग कोविड से हिट हो चुके हैं अभी तक पिछले 2 महीने के अंदर। सो दैट इज अ काइंड ऑफ अ शॉक। सो हाउ डू यू एक्सपेक्ट दैट इकोनॉमी विल कम डाउन? तो ये रिफॉर्म जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म रहता है, लेकिन अभी ये आर्टिकल कह रहा है कि गवर्नमेंट को कुछ और करना चाहिए। इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट की इनकम इम्पैक्टेड है, तो गवर्नमेंट ने फिस्कल कंसोलिडेशन किया। अभी देखो, फिस्कल एस्पेक्ट में 2 चीजें होती हैं, पॉलिसी 2 तरह की हो सकती हैं। एक होता है फिस्कल कंसोलिडेशन। इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कम कर रही है, और गवर्नमेंट
डेट कम करना चाहती है बेसिकली, एक्सपेंडिचर कम करेगी, डेट कम होगी। दूसरा जो पॉलिसी होता है वो एक्सपेंशन का होता है, और इसमें इकोनॉमी जो है पंप करती है, इकोनॉमी पैसा पंप करती है, इकोनॉमी को रिवाइव करने की कोशिश करती है। तो ये कहना है कि भाई एक एंड पे गवर्नमेंट चाहती है कि इकोनॉमी रिवाइव करे, ऑन द अदर हैंड दे आर फोकसिंग ऑन कंसोलिडेशन, यानी वो डेट कम करने में लगे हुए हैं। आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ लिमिटेड इकोनॉमिक स्टिमुलस, ऐसा मानना है कि जो हमने इकोनॉमिक स्टिमुलस प्रोवाइड किया वो बहुत कम था। अभी यूएसए की बात करते हैं, यूएसए का जो अभी मिस्टर बिडेन के बाद जो पैकेज है दैट इज ह्यूज। इनफैक्ट यूएसए में एक्सपेक्टेड है दैट दे विल ग्रो 6% प्लस, यानी कोविड के इम्पैक्ट होने के बाद वो 6% प्लस ग्रो करेंगे। इंडिया ने भी 10 लाख करोड़ का इकोनॉमिक पैकेज दिया था लास्ट ईयर, बट वो लिमिटेड था। गवर्नमेंट रिवर्टेड टू फिस्कल कंसोलिडेशन so that deficit कम हो, deficit मतलब गवर्नमेंट का घाटा, fiscal deficit कम हो। accordingly it raised budgeted expenditure by less than 1% in the last budget, यानी गवर्नमेंट ने बहुत लिमिटेड जो है अपने बजट को बढ़ाने की कोशिश करी है, which is not good as per this article। कंसर्न्स क्या है? डाउट ओवर इफेक्टिवनेस और रिफॉर्म्स इन शॉर्ट टर्म। क्या ये रिफॉर्म्स का शॉर्ट टर्म बेनिफिट होगा? क्या रिफॉर्म से इकोनॉमी रिवाइव करेगा? वेल, article says that economic reforms are well intended, but they will not ensure economic recovery as government is expecting. Current economic situation and expectation have failed to enthuse private sector investment. ये जो अभी रिफॉर्म्स हो रहे हैं या जो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करेगा, वो नहीं हो रहा है। अगर आपको याद हो, इन द लास्ट क्लास आई डिस्कस्ड दैट इकोनॉमी में जो डिमांड होता है, द डिमांड कैन कम फ्रॉम 4 सेक्टर्स। वन इज कॉल्ड प्राइवेट कंजम्पशन, सी, second is investment, third is government expenditure and fourth is net exports। तो ये 4 एरिया से डिमांड आते हैं। अभी सेकेंड वेव में ये जो कंज्यूमर का जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ये काफी कम हो गया। ये सारे डिमांड एक्सपेंडिचर से आते हैं, खर्च से आते हैं। तो ये कंज्यूमर ऑलमोस्ट 50% प्लस वो यहीं से आता है, कंज्यूमर से आता है। फिर इन्वेस्टमेंट, अभी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट भी कर सकता है, आप भी करते हो, नेचुरली प्राइवेट इन्वेस्टमेंट काफी करता है, तो ये इन्वेस्टमेंट भी डाउन है। तो ये इन्वेस्टमेंट रिवाइव करना है एंड कंज्यूमर सेंटिमेंट को रिवाइव करना है। अभी फॉर एग्जांपल राइट नाउ इफ यू गो टू द मार्केट, आप क्या परचेज करोगे? आप फूड आइटम परचेज करोगे, यू विल गो एंड परचेज द आइटम व्हिच आर हेल्पफुल टू यू। मे बी आप मेडिकल आइटम्स परचेज करोगे, फूड आइटम्स परचेज करोगे, बट यू विल नॉट परचेज अगर कपड़े लेने हैं तो आप कहोगे लेट्स पोस्टपोन इट, 4 महीने बाद लेंगे, बिकॉज यू नेवर नो कि भाई पता नहीं मेरी इनकम इम्पैक्ट होगी कि नहीं होगी, या इनकम कम हो सकती है, कोविड से इम्पैक्ट हुआ है। जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, दे आर द ओनली पीपल हु आर रिलेटिवली सिक्योर, अदर पीपल, बिजनेसेस, एवरीबॉडी इज इम्पैक्टेड बाय दिस। सो जिससे क्या होगा? इन्वेस्टमेंट इम्पैक्ट होगा, कंजम्पशन भी इम्पैक्ट होगा। कंपनीज को भी पता है कि लोग कम खर्च कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, दे विल पोस्टपोन द इन्वेस्टमेंट, बिकॉज इकोनॉमी ग्रोज इनटू सर्टेनिटी। अभी हमको पता नहीं है राइट नाउ, मैं और मेरी टीम मल कर रही है, अगर गवर्नमेंट अलाउ करती है लेट्स से ऑफलाइन सेंटर ओपन करने का, सो मैं और मेरी टीम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई क्या हम जुलाई में सेंटर ओपन कर सकते हैं। एक तरफ न्यूज आ रही है अभी थर्ड वेव भी आ जाएगा 8 वीक में, 10 वीक में, 12 वीक में। अभी हम ओपन करें, कोई हमारा टीम मेंबर इम्पैक्ट हो जाए, कोई स्टूडेंट को कोविड हो जाए, तो अभी ओपन किया नहीं कि पूरा सेंटर बंद करना पड़ेगा। सो देयर इज लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी। वैक्सीन लगवा रहे हैं, बट वैक्सीन लगवाने के बाद भी होता है ब्रेक थ्रू कोविड, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो जाता है। सो यहाँ पर अनसर्टेनिटी है, इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में, कंज्यूमर कंजम्पशन के फॉर्म में, एंड द ओनली सेवियर इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इसी कुछ कर सकती है। अच्छी बात है कि हमारे एक्सपोर्ट्स रिवाइव कर रहे हैं, उसका रीजन ये है कि ग्लोबल रिकवरी बेटर हो रही है, स्पेशली यूरोपियन नेशंस एंड ऑफ कोर्स यूएसए, बिकॉज हमारा मैक्सिमम जो मार्केट है वो इन कंट्रीज में है, यूएसए में है, यूरोपियन नेशंस में है, और यहाँ पे वैक्सीनेशन रेट काफी अच्छा हो गया है इन परसेंटेज टू पॉपुलेशन, एंड दैट इज व्हाई वी आर एक्सपेक्टिंग रिवाइवल। बट ये इनफ नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करेगा। प्राइवेट सेक्टर तभी इन्वेस्टमेंट करेगा जब उसको पता होगा कि एक पॉजिटिविटी है। अभी गवर्नमेंट वैक्सीनेट कर रही है, जैसी वैक्सीनेट करेगी तो चांसेस ऑफ थर्ड वेव अगर होगा भी तो छोटा वेव होगा, लोग खांसी जुकाम होकर निकल जाएगा, ऐसा इकोनॉमिस्ट का मानना है या एपिडेमोलॉजिस्ट का लोगों का मानना है। So that is what is we have to look at. Currently, we are looking at ways through which private sector investment is something which government cannot expect. Then the next is low public expenditure would impact demand generation. अभी गवर्नमेंट प्राइवेट हम आप जैसे लोग तो खर्च कम कर ही रहे हैं, या फिर हम वी आर जस्ट गोइंग फॉर द नेसेसरी एक्सपेंडिचर। अगर मुझे कोई कार लेना है तो मैं कहूंगा अरे देखते हैं अभी, इवन इफ यू हैव मनी इन योर अकाउंट, आपके पास बहुत सारा पैसा पड़ा है, लेकिन आप प्राइवेट जॉब में हो या फिर आपका कोई बिजनेस है, यू विल वेट एंड वॉच, कह रहे नहीं यार चला लेंगे काम भी, वैसे भी लॉकडाउन लग जाता है कभी भी, बाहर तो जाना नहीं है। राइट नाउ आई एम सिटिंग इन यूपी एंड यूपी में लॉकडाउन है, आप बाहर जाओ मार्केट बंद है, कुछ भी नहीं कर सकते, कल भी बंद था, वीकेंड्स हमेशा बंद रहेगा,
सो अभी पता नहीं, गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम मार्केट खोल रहे हैं, लेकिन अगर केसेस बढ़ेगा तो हम तुरंत बंद कर देंगे। लो भाई, क्या करें फिर? सो यहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट ही स्पेंड कर सकती है, और यहाँ पे लो पब्लिक एक्सपेंडिचर विल इम्पैक्ट डिमांड जनरेशन। सो आर्टिकल ये बता रहा है कि जो फिस्कल कंसोलिडेशन हो रहा है, जहां गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस को कम कर रही है डेट को कम करने के लिए, इट इज नॉट अ बेस्ट पॉलिसी इन द करंट सिचुएशन। देयर हैज बीन इंक्रीज इन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड कुड नेगेटिवली इम्पैक्ट demand in the economy. The decision to limit public expenditure even as the economy recovery process is most likely to be hit by the second wave will only negatively impact economic recovery process. तो ये negatively economic recovery process को impact करेगी, ऐसा कहना है। द ओनली वे फॉरवर्ड इज कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करे, जैसे कि यूएसए की गवर्नमेंट ने पैकेज लेके आए हैं, और बहुत बड़ा पैकेज है, $2 ट्रिलियन का पैकेज है, सॉरी $1 ट्रिलियन का पैकेज है, ऑलमोस्ट हमारी इकोनॉमी का 50% का उनका पैकेज है। बट हमारे अपने कंसर्न्स हैं। अभी आप देखो पेट्रोल में, कल मैंने पेट्रोल परचेज किया, 95 रुपीज था 1 लीटर। अभी 1 लीटर में गवर्नमेंट को 55 रुपीज तो गवर्नमेंट को जा रहा है, 45 रुपीज द एक्चुअल प्राइस। अभी 55 रुपीज गवर्नमेंट को जा रहा है, इसमें 35 रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जा रहा है, एंड 20 रुपीज स्टेट गवर्नमेंट को जा रहा है। गवर्नमेंट को पैसा नहीं मिल रहा है तो वो टैक्स यहाँ कम नहीं कर रही है। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर कैसे बढ़ेगा जब तक गवर्नमेंट कर्ज ले सकती है, गवर्नमेंट कैन प्रिंट मनी, बट हम कुछ नहीं कर सकते। सो दैट इज वेयर द आर्टिकल सेज दैट पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर है उनको बढ़ाना चाहिए, एंड दैट इज द ओनली वे थ्रू व्हिच इकोनॉमिक रिकवरी विल टेक मोर रिफॉर्म्स। करना अच्छी बात है, बट रिकवरी विल टेक मोर, रिकवरी टेक्स मोर देन रिफॉर्म। ठीक है, गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट हायर पब्लिक एक्सपेंडिचर as the way out for current public slump even if it leads to higher than budgeted deficit inflation। इनका मानना है कि भाई आप और डेट लीजिए और कर्ज लीजिए, और हमारा जो डेट है वो डेवलप कंट्रीज कंपैरिजन में काफी कम है। ठीक है, तो एक और प्रॉब्लम होगा। अब जैसे मान लो गवर्नमेंट इकोनॉमी में पंप करती है पैसा, कैसे पंप करती है? मान लो गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम 1% ऑफ जीडीपी इतना हम रुपी प्रिंट करेंगे, 1% मतलब 2 लाख करोड़। अभी गवर्नमेंट ने 2 लाख करोड़ का पैकेज दे दिया। अब जब ये पैकेज दिया तो नेचुरली इससे डेट बढ़ेगा, गवर्नमेंट का कर्ज बढ़ेगा। व्हेन द डेट गोज अप, बट रिमेंबर इट हैज अ पॉजिटिव इफेक्ट। वो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो इकोनॉमी में, आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट कर रहे हो, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे इन्वेस्ट कर रहे हो। तो जब आप ये सब करोगे, या फिर आप सोशल बेनिफिट दे रहे हो, या फिर इनकम ट्रांसफर कर रहे हो, लोग अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, तो ये सारा पैसा जो है वो क्या करेगा, लोग के हाथ में जो पैसा आएगा तो डिमांड जनरेट होगा। आपके अकाउंट में पैसा आ गया जो एक्सपेक्टेड नहीं था, लेट्स से पुअर पर्सन गेट्स 1,000 रुपीज in his or her account, और ऐसे 20 करोड़ लोग हैं, तो उतना पैसा इकोनॉमी में आएगा। तो वो जो पैसा डिमांड जनरेट करेगा, ये इकोनॉमी की साइकिल को इंप्रूव करेगा, इकोनॉमी विल कम बैक टू द नॉर्मल। और इस तरह के जो पैसे पंपिंग को बोलते हैं स्टिमुलस टू द इकोनॉमी। स्टिमुलस मतलब एक्सटर्नल आप सपोर्ट कर रहे हो, फिस्कल स्टिमुलस। सो इकोनॉमिस्ट लोगों का कहना है कि फिस्कल स्टिमुलस आप करिए, एंड दैट इज द वे। बट फिस्कल स्टिमुलस का एक प्रॉब्लम है, इससे क्या होगा, जब लोग के हाथ में पैसा आएगा तो डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड जब आएगा बहुत तो इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। ऑलरेडी हमारा इन्फ्लेशन 6% है, जो कि हाई लेवल पर है। तो ये कह रहे नहीं, अभी फोकस इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए, फोकस आप इकोनॉमी को रिवाइव करो इवन एट द कॉस्ट ऑफ डेफिसिट यानी डेट या इन्फ्लेशन। इंडियाज पब्लिक डेट इज लो बाय कंपैरिजन टू ओईसीडी कंट्रीज। ओईसीडी डेवलप्ड कंट्रीज का ग्रुप है। इन्फ्लेशन फ्रॉम इकोनॉमिक एक्सपेंशन कुड बी कंट्रोल्ड थ्रू इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ फूड रिसोर्सेज। इनका कहना है कि इन्फ्लेशन इसलिए ज्यादा है क्योंकि फूड जो है महंगाई फूड का ज्यादा है, और यहाँ पे फूड की महंगाई या फूड आइटम्स का महंगाई इसलिए ज्यादा है बिकॉज अनअवेलेबिलिटी ऑफ फूड। तो अगर फूड अवेलेबिलिटी बढ़ जाए देन फूड इन्फ्लेशन विल गेट कंट्रोल, और फूड इन्फ्लेशन जब कंट्रोल होगा तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। तो एक तरीका ये है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के कि आप सप्लाई को भी इंप्रूव करो। डिमांड अगर बढ़ता है, पैसा लोगों के हाथ में आया और आपने सप्लाई भी बढ़ा दिया, तो सप्लाई भी बढ़ गया तो डिमांड सप्लाई मैच हो जाएगा और महंगाई नहीं बढ़ेगी। अभी डिमांड, आप पैसा दे रहे हो बट आप सप्लाई नहीं बढ़ा रहे हो। लेट्स से मेरे हाथ में पैसा है बट व्हेन आई गो टू द मार्केट आई एम नॉट एबल टू परचेज थिंग्स बिकॉज फॉर रीजन कि भी मार्केट में सामान नहीं है, तो महंगाई ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। बट अगर सप्लाई भी बढ़ा दोगे, इफ डिमांड इंक्रीजेस एंड कॉन्सिक्वेंटली देयर इज इंक्रीज इन सप्लाई आल्सो, इन्फ्लेशन विल नॉट इंक्रीज। तो उनका कह रहा है कि इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ फूड रिसोर्सेज करो ताकि जो फूड इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल हो, एंड फूड इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है इस वक्त एट द करंट लेवल। सो दिस इज व्हाट द रिकमेंडेशन इज दैट हैज टू बी डन। तो इकोनॉमिक रिवाइवल में गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, इन्फ्लेशन कंट्रोल भी करना पड़ेगा। एक एंड पे आरबीआई इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, दूसरे एंड पे गवर्नमेंट को भी कंट्रोल करना चाहिए। तो ये दिस इज व्हाट दिस आर्टिकल सेज। So that completes today's lecture. Now we'll take some doubts if there are any.